اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں جبکہ پنجاب میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جبکہ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ بالکل اہم اور بڑی خبر ہے کہ اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ لاہور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ وفاقی دارالحکومت سے بھی خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جبکہ پشاور، دیر، چترال میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ شدت کا اندازہ تاحال نہیں لگایا گیا، لیکن ابھی اہم خبر ہے جو کہ آپ کو دے رہے ہیں کہ اسلام آباد، پشاور، پنجاب کے دیگر شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور لوگ جو ہے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ مختلف شہروں کی صورتحال جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے، لاہور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ وفاقی دارالحکومت میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اگر بات کی جائے پشاور کی، دیر کی، چترال کی، تو وہاں پر بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کا مرکز، اس کی شدت اندازہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی اطلاعات یہی ہے کہ پشاور، دیر، چترال میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ چارسدہ، مالاکنڈ، سوات، مانسہرہ، باٹا گرام میں شدید زلزلہ، شانگلہ اور نوشہرہ میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ لوگوں میں خوف و ہراس، لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نظر آئے۔ فیصل آباد اور ننکانہ صاحب میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بالکل، ابھی شدت کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اب تک جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، شانگلہ اور نوشہرہ میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں سے یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ چارسدہ، مالاکنڈ، سوات، مانسہرہ، بڈگرام میں بھی شدید زلزلہ آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پشاور، دیر، چترال میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ تو اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں سے یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے، ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شہروں کے حوالے سے بھی بتائیں کہ چارسدہ، مالاکنڈ، سوات، مانسہرہ، بڈگرام میں جبکہ شانگلہ اور نوشہرہ میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ فیصل آباد اور ننکانہ صاحب سے بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ تو پنجاب کے مختلف شہر ہیں، اسلام آباد یعنی کہ دارالحکومت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو KPK کے بہت سارے ایسے شہر ہیں جہاں سے یہ رپورٹس آ رہی ہیں جہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ عمر بن آصف ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عمر، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اب تک کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اور شدت کے حوالے سے کچھ پتہ لگ سکا ہے؟ سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف مقامات ہیں جس میں پشاور اور مالاکنڈ اور گرد و نواح کے علاقے ہیں جہاں پہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے جب رابطہ کیا گیا تو ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ابھی یہ تعین کیا جا رہا ہے کہ ریکٹر اسکیل پہ اس کی شدت کتنی تھی اور جو گہرائی ہے اس کو بھی اسے ناپا جا رہا ہے، اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو زلزلہ ہے اس کا مرکز کون سا تھا۔ زلزلے کے باعث اگر دیکھا جائے اب تک تو کسی طریقے کے کسی جانی اور مالی یا ایمرجنسی صورتحال کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، ساتھ رہے گا عمر۔ لاہور سے عباس نقوی نے ہمیں جوائن کیا، انہیں شامل گفتگو کریں گے۔ عباس، آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ لاہور میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح لاہور شہر میں بھی زلزلے کے کافی زیادہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، اور جس وقت اب سے کچھ دیر قبل زلزلہ آیا تو لوگ جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا ورد کر کے گھروں سے باہر نکل آئے تھے بڑی تعداد کے اندر، اور کافی دیر جو ہے یہ جھٹکے جو ہے زلزلے کے محسوس ہوتے رہے ہیں، اور اب تھوڑا سا اس کے اندر ٹھہراؤ آیا ہے، لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے باہر نکل آئی تھی۔ ٹھیک ہے، لوگوں میں خوف و ہراس پایا گیا، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ عباس جو ہے وہ ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ منظر شگری ہمیں گلگت سے جوائن کر چکے ہیں۔ بالکل، منظر شگری آپ بتائے گا، وہاں سے بھی کچھ رپورٹس اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، کیا آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں؟ جی، پورے گلگت بلتستان کے جو مختلف علاقے کراکرم، ہندوکش اور ہمالیہ جو رینج ہے اس کے اندر شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے بعد جو ہے لوگ گھروں سے باہر نکلے۔ اس وقت تک جو ہے وہ چونکہ کافی عرصے سے یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے تھے، چونکہ وہ علاقہ ہے جو ہنزا کا بالائی علاقہ چپورسن، وہاں سے ایک شدت زلزلوں کی چل رہی تھی جس کی جغرافیکل رپورٹ بھی سامنے آئی ہے پچھلے دنوں۔ لیکن آج کا جو زلزلہ ہے وہ یقیناً گلگت بلتستان کے ساتھ ملک کے مختلف علاقوں میں اس کے جھٹکے محسوس کیے گئے، لوگوں کے اندر ایک خوف و ہراس پایا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک کہیں سے کسی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ جی، اب تک کوئی نقصان کی اطلاع الحمدللہ موصول نہیں ہوئی ہے، جیسے کہ بتا بھی رہے ہیں ہمارے نمائندے مختلف شہروں سے، لیکن خاص طور پر جیسے کہ ہمارے نمائندگان بتا رہے ہیں پنجاب کے مختلف شہر ہیں، KPK کے مختلف شہر ہیں جہاں سے یہ شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے کے۔
इसके साथ साथ पेशावर की अगर हम बात करें वहां से भी हमें ये इत्तला सामने आ रही है कि ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। बिल्कुल, सज्जाद हैदर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सज्जाद, पेशावर की क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, मुल्क भर के जिले की तरह पिशावर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अगर पिशावर की हम बात करें तो पिशावर में ज़लज़ले के झटकों की जो है शिद्दत काफी ज्यादा थी और इसकी ड्यूरेशन भी जो है तकरीबन 30 से 35 सेकंड तक जो है ज़लज़ले जो है झटके जो है जारी रहे। पहले जो हल्के से झटके आए थे, जिसके बाद जो है एकदम जो है तेज से झटके महसूस किए गए। उसके बाद जो है लोग कल में करते हुए जो है घरों से और प्लाजों से जो है बाहर निकल आए। इस टाइम भी रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत मालूम की जा रही है, लेकिन पेशावर में जो ज़लज़ले के झटके महसूस किए काफी शदीद किस्म के झटके जो है महसूस किए गए हैं। सही, 30 से 35 सेकंड आप बता रहे हैं सज्जाद के 30 से 35 सेकंड तक जो ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं पेशावर में। तो चारसदा, मालाकंड, स्वात, मानसहरा, बाटागराम में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ज़लज़ले के झटके इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में महसूस किए गए हैं। टेक्सला और हसन अब्दाल में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर और नौशहरा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत और इसका मरकज ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक इत्तलात ये हैं कि इस्लामाबाद में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। 6.3 जो है वो शिद्दत महसूस की गई है। ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 महसूस की गई है। ज़लज़ला पेमा मरकज का ऐसा बताना है कि ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 महसूस की गई है। ज़लज़ला पेमा मरकज के मुताबिक जो ज़लज़ला आया है, जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं, उसकी शिद्दत 6.3 महसूस की गई है। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि ज़लज़ले की शिद्दत के हवाले से आपको बता रहे हैं। ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 महसूस की गई है। ज़लज़ला पैमा मरकज़ की जानिब से ये बताया गया है। जैसे कि इससे कबल हम आपको बता रहे थे, मुख्तलिफ शहरों में पंजाब के, KPK के और गिलगित की तरफ भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। इसकी जो शिद्दत है उस हवाले से अपडेट सामने आ रही है कि ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 महसूस की गई है। ज़लज़ला पैमा मरकज़ की जानिब से ये बताया जा रहा है। तो आपको बताएं कि पंजाब के और KPK के और साथ में इस्लामाबाद में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर, दीर, चित्राल, इसके साथ साथ चारसदा, मालाकंड, स्वात, मानसहरा, बडग्राम, शांगला और नौशहरा में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। और अब ज़लज़ला पैमा मरकज़ की जानिब से ये बताया जा रहा है कि ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 महसूस की गई है। ये फिगर भी अब सामने आई है। जो शिद्दत है इसकी वो 6.3 बताई जा रही है और मुख्तलिफ शहरों में ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। जबकि अब तक आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ऐसी इत्तलात भी सामने आई हैं। उमर आसिफ, आप बताइएगा पैमा मरकज़ क्या बता रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ज़लज़ला पैमा मरकज के मुताबिक जो ज़लज़ले की शिद्दत थी वो 6.3 रिकॉर्ड की गई है, जबकि जो इसकी गहराई थी वो 190 किलोमीटर जो है रिकॉर्ड की गई है। मैं फिर बताऊं कि जो मैग्नीट्यूड था, जो शिद्दत थी वो 6.3 थी, जबकि जो इसका मरकज था ज़लज़ले का वो कोई हिंदू कुश अफगानिस्तान बताया जा रहा है। ज़लज़ला पैमा मरकज की जानिब से बताया गया है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, टेक्सला और गिरदोनवा के इलाकों समेत खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, पेशावर, सवाज, शांगला में ज़लज़ले के झटके जो महसूस किए गए, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के भी चंद इलाके हैं जहाँ पे ज़लज़ले की शिद्दत को महसूस किया गया। जी ठीक है, उमर हमें अपडेट कर रहे थे। ज़लज़ले का मरकज हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान था, ऐसा बताना है ज़लज़ला पैमा मरकज का। और जो शिद्दत है वो 6.3 बताई जा रही है और गहराई 190 किलोमीटर बताई जा रही है। तो यह अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। गहराई 190 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 महसूस की गई है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर, दीर, चित्राल में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। चारसदा, मालाकंड, स्वात, मानसहरा, बटागरा में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। शिद्दत 6.3 बताई जा रही है और गहराई 190 किलोमीटर बताई जा रही है। शांगला और नौशहरा का अगर जिक्र करें तो वहां पर भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि फैसलाबाद, खुशाब और ननकाना साहिब में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू के मुख्तलिफ अजला ऐसे हैं जहां पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और शिद्दत 6.3 बताई जा रही है, जबकि गहराई 190 किलोमीटर बताई जा रही है। तो यह अहम और बड़ी खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। लोगों में खौफ व हिरास फैला और कलमा तैयबा का विर्द करते हुए लोग अपने घरों से बाहर निकले। तो ज़लज़ला और पाकिस्तान के जिन जिन इलाकों में जिन जिन जगहों पर ये ज़लज़ला आया है उससे मुतालिक आपको अपडेट करें। ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 महसूस की गई और ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक जो गहराई है वो 190 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है।
जबकि इसका जो मरकज है वो हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान बताया जा रहा है। बिल्कुल उमर आसिफ, जैसे कि हमें बता भी रहे थे कि गहराई 190 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है और साथ में हिंदूकुश अफगानिस्तान इसका मरकज बताया जा रहा है। उमर आसिफ, अब तक जो डिटेल सामने आ रही हैं मुख्तलिफ शहरों से, उसमें अब तक कुछ रिपोर्ट हुआ है? देखें, अगर हम तमाम तर मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात जहाँ पे ज़लज़ला महसूस हुआ है वहाँ पे कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन जो है सामने नहीं है। ये रेस्क्यू के जो तमाम तर इदारे हैं और बशमूल पुलिस वो तमाम तर सूरत हाल को देख रही है कि अगर कहीं से कोई भी इंसिडेंट रिपोर्ट होता है ज़लज़ले के बाइस तो फौरन जो है उस पर रिस्पॉन्स किया जा सके। लेकिन ये चीज़ देखने में आई है कि ज़लज़ले की शिद्दत जो है बहुत ज़्यादा थी, 6.3 थी, लेकिन अभी तक किसी तरीके का कोई भी नुकसान सामने नहीं आया। जी, यानी कि उमर आप ये बता रहे हैं कि मुख्तलिफ महकमों को इस वक्त गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो अलर्ट भी किया गया है? जी बिल्कुल, देखें क्योंकि ज़लज़ले की शिद्दत ज्यादा थी तो अलर्ट किया गया है महकमों को तमाम तर के अगर किसी भी हेल्पलाइन पे रेस्क्यू की किसी भी कॉल आती है किसी भी जगह पे, अगर कोई भी ज़लज़ले की वजह से कोई भी इंसिडेंट होता है तो फिर फोर्स को जो है मुकम्मल तौर पर रिस्पॉन्ड किया जाए। लेकिन अभी तक कहीं भी किसी भी तरीके के ना कोई जानी नुकसान जो है किसी भी हेल्पलाइन पे सामने आया है, ना ही कोई माली नुकसान जो है इस टाइम सामने आया है। जी ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे थे उमर, आपका शुक्रिया। कमरुल मुनव्वर इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कमर, आपके पास क्या तफसील है? जी बिल्कुल, आज एक इससे कबल जो है 5 बजे के करीब भी ज़लज़ला रिकॉर्ड जो है वो किया गया था और इसके हवाले से जो PMD है इनकी जानिब से ये बताया गया था कि 3:39 पे जो ज़लज़ला इसी फेल्ट में जो है वो फील किया गया वो 5.5 था और इससे कबल आज ही के रोज 1:53 पे भी ज़लज़ला जो है वो रिकॉर्ड किया गया जो हिंदूकश रीजन और अफगानिस्तान में था, जिसका एपिक सेंटर और इसकी जो मैग्नीट्यूड था वो 4 था। उसके बाद अब ये 9:21 जो है इस पर यह ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया और इस हवाले से तमाम जो रेस्क्यू के इदारे हैं उनको ना सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि वजारत दाखिला के लोगों की जानिब से भी जो है वो अब खुद पूछगिछ की जा रही है कि किसी जगह पर इससे कोई नुकसान जो है या कोई इम्पैक्ट जो है वो अभी तक आया तो नहीं है। ताहम इब्तदाई तौर पर इस हवाले से कोई भी इतलात नहीं सामने आई। खास तौर पर ऐसा एरिया जहाँ जो वल्नरेबल है उनको चेक किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर और मीरपुर का जो इलाका है वहाँ पर जो रेस्क्यू की टीम्स हैं उनसे भी रब्ता किया गया लेकिन अभी तक की कॉल जो है वो मौसूल नहीं हुई। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाके जो है वो यहाँ पर बारिश भी बहुत ज्यादा है और इस हवाले से रेस्क्यू के इदारे पहले ही अलर्ट है और इसी वजह से इनको अभी तक कोई कॉल जो है वो मौसूल नहीं हुई। ताहम कहा जा रहा है कि क्योंकि ज़लज़ले का जो दौरानिया था वो बहुत ज्यादा था और तकरीबन 35 से 36 सेकंड तक ये ज़लज़ले के झटके जो है वो महसूस किए जाते रहे, तो इसी वजह से जो रेस्क्यू के इदारे हैं वो खुद भी राब्ता कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों, खासतौर पर वो जो फॉल्ट लाइन जिसका जिक्र हर दफा किया जाता है बालाकोट, मुजफ्फराबाद और इस के इलाके वहाँ के जो रेस्क्यू के लोग हैं उनसे राब्ता किया जा रहा है। बिल्कुल, इस वक्त तमाम जो रेस्क्यू के महकमे हैं इस वक्त तमाम महकमों को अलर्ट भी किया गया है, नज़र भी रखी जा रही है और जैसे कि आपको हम नाज़रीन को अपडेट भी करें कि ज़लज़ले के बायस चित्राल मालाकंड के मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें गिर गई हैं। ऐसी रिपोर्ट्स और ऐसी इतलात भी अब सामने आ रही हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि ज़लज़ले के बायस चित्राल मालाकंड के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर दीवारें गिरी हैं। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए हैं, दुकानों से बाहर आ गए हैं। इसके मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो वो तमाम अफराद हैं जब ज़लज़ला आया जिनकी शिद्दत ज़्यादा बताई जा रही है, 6.3 इसकी शिद्दत बताई जा रही है। डायरेक्टर पैमा मरकज नजीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। नजीब साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नजीब साहब, इस वक्त जो ज़लज़ले की शिद्दत बताई जा रही है 6.3 बताई जा रही है, मजीद आप क्या तफसीलात शेयर कर सकते हैं? जी हाँ जी, ये अर्थक्वेक है जो हिंदूकुश रीजन में अफगानिस्तान में आया है तो और ये जो है तकरीबन के सारे KPK में भी फेल्ट हुआ है और पंजाब के एरिया में भी जो है ये फेल्ट हुआ है और इसकी जो शिद्दत है वो तकरीबन 6.1 थी। तो लेकिन ये है कि ये फेल्ट चूंकि डेप्थ इसकी कम थी तो इस वजह से ये ज्यादा फेल्ट हुआ। सही, ठीक है। अच्छा नजीब साहब फरमाएगा, जोग्राफियाई लिहाज से अगर हम देखें तो एक पट्टी ऐसी है जो कि हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे कि वहां पर पहले भी इसके झटके महसूस किए गए लेकिन उन्हीं झटकों ने शायद मुतासर किया बाकी भी इलाकों को। ये मैडम है जो सिलसिला है हिंदूकुश ये बहुत लंबा है, मतलब तकरीबन पाकिस्तान से गुजरते हुए अफगानिस्तान तक जाता है और ये फ्रीक्वेंट यहाँ पे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं और ये जो है ये जो ज़लज़ला है ये भी उन्हीं के ज़लज़लों का सिलसिला है। यहाँ पे अर्थक्वेक्स जो हैं वो तकरीबन आते रहते हैं, कभी हायर मैग्नीट्यूड के कभी लोअर के, लेकिन ये है कि डेप्थ पे डिपेंड करता है। जो थोड़ा शैलो होता है वो ज़रा ज़्यादा फेल्ट हो जाता है।
अच्छा, जैसे कि ये बताया जा रहा है नजीब साहब कि इसकी जो डेप्थ है, जो गहराई है वो 190 किलोमीटर है, इसके नुकसानात ज़्यादा तो नहीं हो सकते, ऐसा खदशा तो नहीं? सर ये है कि अब ये जो डैमेजेस डिपेंड करते हैं ऑन स्ट्रक्चर, कि अगर जहाँ पर स्ट्रक्चर मड स्ट्रक्चर है या वो है वो ज़्यादा इस पे इफेक्ट हो सकता है। लेकिन ये है कि चूंकि ये जो हिंदू कुश की डेप्थ है ये तकरीबन 150 से शुरू होती है और ये 220 तक जाती है। तो ये 190 का जो है ये वहाँ उसके हिसाब से ये एक शैलो अर्थक्वेक है। तो इस वजह से जो है कई स्ट्रक्चर्स को जो है मे बी डैमेज करे, लेकिन ये है कि ज्यादातर ये मड स्ट्रक्चर या लूज स्ट्रक्चर को कर सकता है, हायर स्ट्रक्चर को इतना इफेक्ट नहीं करेगा। सही। अच्छा नजीब साहब, ये भी फरमाएगा कि जब इतनी शिद्दत का जल्जला आता है तो अमूमन ये होता है कि आफ्टर शॉक्स का ख्याल दिल में आता है, तो खुदा न खास्ता इस तरह की कोई मुमकिनात तो नहीं है? ये जो मैडम 6.2 या 6.3 का होता है, इसके फिर देखें जब फॉल्ट मूव करती है तो फिर वो जो है थोड़ा बहुत डिस्प्लेस करती है। उस डिस्प्लेसमेंट को वापस अपनी जगह पर आने के लिए भी अर्थक्वेक्स रिक्वायर्ड होते हैं जो आफ्टर शॉक होते हैं। तो ये जो बड़ा अर्थक्वेक है ये मे बी आफ्टर शॉक्स इसके आए, लेकिन ये है कि वो इससे कम मिकदार के होंगे। ठीक है, नजीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, बेहद शुक्रिया, आपने समय से खुसूसी गुफ्तगू की। तो आपको अपडेट करें कि इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ज़लज़ले के झटके, ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 महसूस की गई है, जबकि गहराई जो है वो 190 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकुश अफगानिस्तान में है। इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में।